afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. So, in the last class, we did the demand, in supply, the relationship, but the factors affecting demand and factors affecting supply. Now, in this class, we are going to start with the market equilibrium. With the help of demand and supply curve, we are going to start with the market equilibrium. Now, what exactly is market? First of all, अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज साथ साथ अपने चैट बॉक्स में लिखते जाना, राइट? So let's suppose, what is market actually? Market is a play. It's an important institution where buying and selling of goods are to be done. Where market क्या है? Market जहां पे distribution of goods produced, जो भी प्रोडक्शन होती है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, वो हो जगह. जरूरी नहीं है मार्केट कोई फिजिकल प्लेस भी हो. एज यू गाइज आर अवेयर अबाउट राइट नाउ कि वी आर हैविंग ई मार्केट. आप सब ई शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ द मार्केट. इन सिंपल वर्ड्स, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर. Is a place, market is a place where buyers and sellers come together for what? Come together for the satisfaction of their want, or you can say where buyers and sellers come together for buying and selling of commodity or satisfaction of their want. क्योंकि जो सेलर है उसकी want क्या है? To earn the to get satisfaction of the want, right? Seller की satisfaction क्या है? To earn maximum profit. Buyer की satisfaction क्या है? To get maximum level of the output, more output. So that means दोनों ही person, जो buyer भी है और seller भी है, they come an agreement, they make an agreement. You can say agreement means किसी एक price पे both are agreeing regarding the price, agreement regarding the price, because price is the one thing where buyer and seller जहां पे अपनी level of the satisfaction जो है they can determine, right? So now in this lecture we are going to determine the equilibrium price and the equilibrium quantity demanded as well as supply. ठीक है? So suppose let's explain with the help of an table first of all. So let's suppose, so we are having price. So here I am having quantity, demanded, and here I am having quantity supplied. ठीक है? So let's suppose price जो है मेरी मार्केट में है 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? So quantity demanded है मेरी. Now see, the price increases, quantity demanded will decline. 20, 18, 16, 14, and 12 and 10. Now price increases, quantity supply will increase, right? 10,
10, let's suppose it's 11, 12, 14, 16, 20 and 22. Let it be 12 because हमने जैसा लिया उससे कोई इशू नहीं. ठीक है. Now see, this is the price, this is the quantity demanded, and this is the quantity supply. Right? Sorry. Now equilibrium कहाँ पे आएगी? Where the equilibrium will be? इक्विलिब्रियम कहां पे होगी? जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है. सो दैट मीन्स एट ए पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड. सो दैट मीन्स एट दिस पॉइंट, this is the point where I am having the equilibrium. Right? So this is my equilibrium point. Right? Now equilibrium तो हमें पता लग गया. What happened अगर मार्केट में प्राइस इंस्टेड ऑफ दिस ये 3, 4 या 6, 7, 8 में से कोई प्राइस है तो क्या होगा? What will be the situation? That means we are moving from these are the point of disequilibrium. Right? ये भी disequilibrium पे है. अब मुझे disequilibrium को equilibrium में लेके आना है. कैसे लेके आएंगे? What I'll do is that these are the points where I am having a disequilibrium. अब मुझे disequilibrium को equilibrium पे लेके आना है. Now see, let's suppose market price जो है, let's suppose market price जो है, market price 3 है. What happened? Quantity demanded कितनी है? 20. Quantity demanded is 20, which is greater than quantity supply, that is 12. मेरी quantity supply कितनी है? 12. So that means here quantity demanded is more than quantity supply. Now what I have to do? मुझे करना क्या चाहिए? Now my objective is to डिक्लाइन दिस क्वांटिटी डिमांडेड. मुझे ये क्वांटिटी डिमांडेड को कम करना है एंड साइमल्टेनियसली मुझे क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज करना है. और क्वांटिटी डिमांडेड को कम करने के लिए मैंने क्या करना है? मुझे प्राइसेस को कम करना है. क्वांटिटी डिमांडेड तभी कम होगी ना क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है. अगर प्राइस इंक्रीज होगी तभी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होगी. राइट? एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करनी है. क्वांटिटी सप्लाई कब इंक्रीज होगी? जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी. राइट? सो इन बोथ द केसेस, मतलब इन दिस केस आई हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस. मुझे प्राइसेस को इंक्रीज करना है डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आने के लिए. ठीक है. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे मेरी प्राइस 3 या 4 है, सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज टू मेक इक्विलिब्रियम में आने के लिए मुझे प्राइसेस क्या करनी पड़ेंगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी. Now let's suppose my equilibrium is at price 7, 6, 7, 8 में से कोई भी ले लो. Let's suppose it's at 7. 7 प्राइस है मेरी मार्केट में. Now if price is 7, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मेरी?
quantity demanded है 12, right? So here quantity demanded is 12 units and the quantity supplied is 20 units, right? यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है क्वांटिटी डिमांडेड से, ठीक है। नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज टू, नाउ अगेन यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करना है, इंक्रीज करना है ताकि मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊं, और क्वांटिटी साइमल्टेनियसली मुझे क्वांटिटी सप्लाई को डिक्लाइन करना है टू रीच द इक्विलिब्रियम बैक। फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करनी है तो मुझे प्राइस को कम करना पड़ेगा, अगर मुझे क्वांटिटी सप्लाई भी कम करनी है देन अगेन प्राइसेस हैव टू डिक्लाइन। सो दैट मींस अगर मैं यहां पे हूं तो मुझे क्या करना है, फॉर रीचिंग द इक्विलिब्रियम बैक मुझे प्राइसेस को डिक्लाइन करना है, डिक्रीज करना है। सो इफ क्वांटिटी डिमांडेड, नाउ इन जनरल वर्ड्स, अगर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड, अगर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाई से, तो मार्केट में क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम आने के लिए आई हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस। सिमिलरली इफ my quantity supply is more than demanded, in this case, so disequilibrium से equilibrium जाने के लिए I have to decrease the prices in the market. I hope it's clear. Very good, Janvi. So yahi if you have any query please type in the chat box, okay? So yahi cheez, same thing I can explain with the help of an diagram. So here I am having prices, मैं साथ ही डायग्राम बना रही हूँ सो दैट कि सेम ही चीज वहां अप्लाई हो जाएगी, सो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, अदरवाइज आप अच्छे से इसको क्लियर बनाना। क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज क्वांटिटी सप्लाई, तो आप इसको अकेली क्वांटिटी भी लिख सकते हो, राइट? सो क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज द क्वांटिटी सप्लाई। नाउ द डिमांड का, there is a downward sloping demand curve we are having, so this is the demand curve of a particular commodity. We are having upward sloping supply curve, and I request you all guys please, it's better take a pen and a paper, साथ साथ diagram draw कीजिए so that कि वी कैन, अगर आपको कोई अभी प्रॉब्लम है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट राइट नाउ ओनली, ओके? प्लीज साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल। सो वी आर हैविंग नाउ इक्विलिब्रियम इज वेयर जहां पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस in the market and this is the equilibrium quantity demanded as well as quantity supply। जैसा मैंने इस केस में लिया था कि प्राइस 5 है और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई इज इक्वल्स टू 16, ठीक है? सो यू कैन टेक द प्राइस, यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 और 16, और ओनली यू कैन राइट द P and Q एज वेल, बोथ आर फाइन, राइट? So here I am having the equilibrium price and here I am having a equilibrium quantity demanded as well as quantity supply. Now let's suppose there is a disequilibrium in the market. So instead of the quantity demanded price P, we are having P1
let's suppose this is the market price prevailing in the market. So this is the market price P1, right? So that means the price above the equilibrium price. Equilibrium price क्या है मेरी? OP. This is the O. So the price above OP is disequilibrium price, or price below OP is also a disequilibrium price. So let it be this one. So P के बाद अगर यहाँ P1 है या P2 है, दोनों ही केसेस कौन से हैं मेरे? डिसइक्विलिब्रियम प्राइसेस के. ओके, सो लेट्स सपोज मार्केट प्राइस जो P1 है, P1 में मेरी क्वांटिटी सप्लाई कितनी है? P1 A. क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? P1 B. दिस इज अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई. सप्लाई ज्यादा है ना डिमांड से. यहाँ पे डिमांड सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, जैसे कि ये वाला केस था एक्सेस सप्लाई का, और ये वाला केस एक्सेस डिमांड का. ठीक है, सो हियर आई एम हैविंग एक्सेस सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ मुझे क्या करना है? मुझे एक साइड से सप्लाई कम करनी है, दूसरी साइड से मुझे डिमांड इंक्रीज करनी है. दोनों केसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे प्राइसेस को डिक्लाइन करना पड़ेगा टू रीच द इक्विलिब्रियम बैक, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर मेरी प्राइस मार्केट में P2 है, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट्स को यहां तक एक्स एक्सिस पे ले आए, बट मैं नहीं लेके आ रही बिकॉज थोड़ी सी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड से दिखती है, लाइंस एंड दैट मतलब मुश्किल होती है थोड़ी एक्सप्लेन करने में और एग्जामिनर को समझने में भी, इसलिए यू कैन राइट ओनली द पॉइंट्स. नाउ लेट्स सपोज this is the price P2 in the market and here demand is, यहाँ पे सप्लाई कितनी थी? P1 is your quantity supply, whereas P1 B is your quantity demanded. So here quantity supply is more than quantity demanded, right? So excess supply case, right? Now if we are coming at price P2, P2 पे मेरी quantity demanded कितनी है? P2F is my quantity demanded, P2G is my quantity supply. Now you can simply, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई. सो ये कौन सा केस हो गया मेरा? एक्सेस डिमांड का, राइट? सो क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है वो ग्रेटर है सप्लाई से. सो हेयर डिमांड है ग्रेटर देन सप्लाई, एक्सेस डिमांड का केस है. नाउ मुझे क्या करना है? मुझे डिमांड को कम करना है और सप्लाई को इंक्रीज करना है, राइट? सो दोनों ही केसेस में आई हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस टू रीच द इक्विलिब्रियम बैक. आई होप इट्स क्लियर. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज पूछ लो. हाँ, एक और चीज, आप यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है कर्व, सो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ कर्व्ड शेप कर्व एज वेल. क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज फॉर द क्वांटिटी सप्लाई. ये आप ऐसे भी कर्व यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज मोस्टली अभी हम 12th तक तो ठीक है हम स्ट्रेट लाइन ही यूज करते थे, बट एक्चुअली जरूरी नहीं है सेम प्रोपोर्शन में ही हर टाइम चेंज हो. सो वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कर्व एज वेल, राइट? टिल नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी?
या बच्चे, चाहे P1 हो या P2 हो, आपने ये देखना है प्राइस के हमारे पास हम किस पोजीशन पे है, राइट हम किस पोजीशन पे है। लेट्स सपोज आपने जैसे ये कहा है कि मुझे P2 वाला बता दो, ये इस पोजीशन पे है फॉर एग्जाम्पल, राइट P2 नीचे है मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस के। मींस व्हाट आई हैव टू डू इज दैट, मेरा मेन मोटिव क्या है, मुझे ये इस पॉइंट पे आना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए देखना पड़ेगा कि हम किस सिचुएशन में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है क्वांटिटी सप्लाई से, ठीक है, एक्सेस डिमांड है। अब मुझे बेसिकली डिमांड कम करनी है, और आपकी डिमांड कम करने के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारी डिमांड कम करनी है, अगर आपकी डिमांड कम करनी है तो मैंने क्या करना है, मुझे आपसे, आपके पास दो ही चीजें, या तो इनकम कम कर दूं आपकी, या फिर प्राइसेस को बढ़ा दूं, सो दैट कि वो प्रोडक्ट आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाए। और जितनी प्रोडक्ट आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी उतनी उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। सो दिस इज द केस लाइक वेयर वी कैन से जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है, तो फिर मैं इक्विलिब्रियम पे वापस आने के लिए देन आई कम बैक टू द इक्विलिब्रियम। So you most of the students ask me a same question that कि excess demand and excess supply यहाँ diagram में issue कैसे है। Let me draw you a diagram. मैं दोबारा से diagram explain कर देती हूँ so that कि किसी को कोई confusion ना रहे। बहुत simple है ये चीज समझना, it's not an difficult task। देखो सिंपल हमने क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड कर्व बनाया, राइट सो मैंने क्या किया, डिमांड कर्व बना दिया, राइट। दी अदर हैंड मैंने क्या किया, सप्लाई कर्व बनाया, फाइन, दो चीजें मेरी हो गई। सो हियर ऑब्वियसली प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी, राइट। यहां तक हो गया, ये मेरी इक्विलिब्रियम है। इसके अलावा मेरी कोई भी प्राइस होगी ना मार्केट में, वो मेरी डिसइक्विलिब्रियम प्राइस है, वो मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है। चाहे प्राइस ये है चाहे प्राइस ये है, ठीक है, कोई भी प्राइस है वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो डिसइक्विलिब्रियम प्राइस है। एक्सेस डिमांड, नाउ अब देखो डिमांड और ये है मेरा सप्लाई, दिस इज द सप्लाई कर्व एंड दिस इज द डिमांड कर्व, राइट। सो आप देखो डिमांड कम है, ये देखो सप्लाई कम है, दिस इज द क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। सो नाउ यू कैन सिंपली सी, मुझे मैंने कुछ नहीं करना, आप खुद ही देख सकते बता सकते हो मेरी डिमांड कितनी है और मेरी सप्लाई कितनी है, तो जोन सी चीज ज्यादा है वो एक्सेस है। सो हियर वी आर हैविंग एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड है तो मुझे डिमांड कम करनी है मार्केट में, मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज को कम करना है और इस चीज को बढ़ाना है, सो दैट कि हम कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे आ जाएं। तो इन दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसीलिए ये लाइंस नहीं ड्रॉ की थी ना, ये देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखती है डायग्राम ना। यहाँ देखोगे क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, ठीक है। सो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, सप्लाई को इस साइड मूव करना है, डिमांड को इधर लेके आना है, सो दैट ये कहीं ना कहीं आपस में मिल जाए, वी विल गेट द इक्विलिब्रियम बैक। आई होप इट्स क्लियर नाउ।
आयुष बच्चे बिल्कुल ठीक बोला आपने, जो आपकी बिल्कुल सही है आपने जो बोला। एज वी ऑल नेट प्राइस एंड डिमांड देयर इज अ नेगेटिव इन, बिल्कुल आयुष आपने बिल्कुल ठीक बोला, वो पूरी आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक है। अगर रियल लाइफ में डिसइक्विलिब्रियम होगा तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ही सिचुएशन बताइए जो दैट्स एप्लीकेबल इन द रियल लाइफ। समटाइम्स आप देखते हो कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार होता है कि आपको जो वेजिटेबल की प्राइसेस डिफरेंट मिलती है मार्केट में, ऑलमोस्ट समटाइम्स तो ऑन ए डेली बेसिस, राइट। वो डेली बेसिस की प्राइसेस डिफरेंट कैसे होती हैं? वो होती है डिमांड एंड सप्लाई से। कई बार आपको अगर याद हो तो अनियन की प्राइसेस 1000 के आसपास पहुंच गई थी, इतना सॉरी 100 के आसपास पहुंच गई थी, 1000। I hope I'm visible again, and I hope you guys can listen to me. Sorry, there was some little network issue. I hope I'm visible. Yes, Ayush, for the economy to be in equilibrium, we have to reach the equilibrium to disequilibrium to the equilibrium state. जैसे जैसे आप इकोनॉमिक्स को डीप सोच समझाओगे ना कि यहाँ ये तो अभी मैंने एक सिंगल कंज्यूमर एक सिंगल मार्केट की बात की थी, इकोनॉमी पूरी तरह से वी वर्किंग ऑन एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई। थ्योरी में क्या लिखोगे? जो मैंने बोला वही लिखोगे ना, एक्सेस सप्लाई, जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस में सिंपल ये चीज एक्सेस सप्लाई मींस द एट ए प्राइस क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे जैसे डिमांड quantity demanded is quantity supply is more than quantity demanded, that is a situation of excess supply. That is very simple. Yes, we okay, Pavan, your question was that how 12th micro is different from the graduation micro. Bache, you are doing a journal micro and you are going to do a journal macro in the next semester, right? So बहुत ज्यादा आपको चीजें डिफरेंट नहीं मिलेंगी, बट हाँ हर टॉपिक में डीप जरूर मिलेगा, राइट? थोड़ा सा। Now let's coming back towards the, I hope I had answered all the queries. If I left something, so please type in the chat box. Okay, Ayush, if you have a doubt, then please type. Okay, if I haven't answered any query, because might be network loss की वजह से कुछ problem होगी हो, so please type again, right? Now till then I'm coming back towards my topic. आयुष तब तक आप अपनी भी query type कर दो, मैं I'll come back to your query, right? So if you remember the demand and supply, we did one thing, two things we did. एक तो extension और contraction किया था और एक increase और decrease किया था, right? Extension और contraction वाला केस we already done. अभी मैंने जो excess demand और excess supply वाला केस आपको कराया, right? उसमें एक demand price से shift होके दूसरी price तक. Now let's suppose there is a increase or decrease in demand.
So if there is a increase or decrease in demand, तब हमारी इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ता है एंड हम डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में कैसे शिफ्ट होते हैं. So now let's start with that, right? So here I am having again the price and quantity. अगर by chance मैं किसी एक्सिस पे ना लिखूं गलती से, so but still you have to write. अभी हर एक्सिस पे प्राइस एंड डिमांड क्वांटिटी ही आएगा, ठीक है. डिमांड नहीं आएगा, क्वांटिटी आएगा, या क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई दोनों आएगा, ठीक है. बिकॉज राइट नाउ वी आर मेजरिंग बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑन द एक्स एक्सिस, राइट. सो दिस इज माय डिमांड कर्व and this is my supply curve, ठीक है. So this was my original level of equilibrium. I hope यहाँ तक किसी को कोई query नहीं होगी. Now let's suppose because of any reason, any n number of reason हमारे पास हैं, we are having an increase in demand. Increase in demand है, so that means the demand curve will shift upwards. And you know all the reasons क्यों हमारा demand curve shift होता है upwards, right? So you guys, मैंने already बता चुकी हूँ क्यों होता है, ठीक है. Now let's suppose the market price remains constant. अगर एक example लेती हूँ कि market price constant रहती है. So if the market price remains constant, so now you can see, ये देखो, ये आपको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये ग्रीन लाइन मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. सो यहां तक सप्लाई इतनी है, डिमांड ये है. सो एट दैट मीन्स डिमांड इज मोर देन सप्लाई. देयर इज ए एक्सेस डिमांड सिचुएशन. एक्सेस डिमांड सिचुएशन है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है. बट बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड हुआ था, सो थोड़ा सा मेरा डिमांड क्वांटिटी में भी इंक्रीज आएगा, ठीक है. सो दिस विल बी द न्यू. नाउ रेड लाइन यू हैव टू ड्रॉ, ग्रीन लाइन नहीं बनानी है आपको, ये ध्यान रखना. So the equilibrium shifts from point E, say point E1, and demand increases from Q, quantity demanded and supply increases from Q to Q1. ये कौन सा केस है, ये केस है मेरा increase in demand का केस. Now let's coming back towards the other. ठीक है. Second, this is again demand curve and supply curve. This is the demand, right? This is the equilibrium price and this is the equilibrium demand. Please आप ना जरा पेंसिल पेन अच्छे से डायग्राम्स ड्रॉ करना. राइट नाउ आई एम ऑन ए डिजिटल बोर्ड, तो मेरी अभी तो खैर मैंने फिर बहुत अच्छी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, बट स्टिल कई बार ये लाइंस ऐसे रफ बन जाती हैं, बट यू हैव टू मेक इट क्लियर, ठीक है. So right now there is a, what I am saying that there is a decline in demand, decrease in demand. Demand curve shifts from D to B1. Let's suppose मेरी income decline हो गई. So in this case equilibrium shifts from point E to E1. So that means the price and quantity both will decline. See, प्राइस भी डिक्लाइन, क्वांटिटी भी डिक्लाइन, ठीक है. सो यहाँ पे दोनों इंक्रीज किए थे. जस्ट हैव अ लुक. सो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. नाउ लेट मी मेक अ केस ऑफ इंक्रीज in
इसके फैक्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्यों इन सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिमांड में डिक्लाइन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ये ऑलरेडी हमने डिमांड और सप्लाई में कर दिया। हर एक्सिस पे प्राइस है, वाई एक्सिस पे डिमांड है, क्वांटिटी है, और एक्स एक्सिस, राइट। So this is again a demand curve and this is again a supply curve. So again we are having a equilibrium. So this is price. Now increase in supply means supply curve जो है मेरा क्या shift कर गया, मेरा upwards shift कर, right? So if supply curve shifts upwards, that means there is an increase in supply. So that means I am moving from S to S1. जरूरी नहीं है पैरेलल कर्व बने, बट इंक्रीज जरूर होना चाहिए। पॉइंट E से we are shifting from point E1. So again in this case अगर मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, ये ग्रीन अगेन आपने नहीं ड्रॉ करनी। So you can see एक्सेस सप्लाई है, डिमांड मेरी इतनी है, ई पॉइंट तक है, सप्लाई मेरी E2 तक है, लेट्स सपोज। सो सप्लाई को मुझे कम करना है, प्राइसेस को सॉरी मुझे जो है डिमांड को इंक्रीज करना है। सो प्राइसेस को आई हैव टू इंक्रीज, थोड़ा सा मेरा डिमांड का जरूर क्वांटिटी जरूर इंक्रीज होगी, बट द प्राइसेस विल डिक्लाइन। So the prices will decline, quantity will increase. ठीक है? So now coming towards the case of decrease in supply. अब बच्चे अगर बाय चांस आप कंफ्यूज हो रहे होगे किसी चीज को लेके कि मैम ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, प्लीज टाइप कर देना, ठीक है? साथ साथ करते जाओ, सो दैट के मुझे वेट नहीं करनी पड़े आपके क्वेश्चंस की, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द बेस्ट ऑफ टाइम। वी आर हैविंग एक्चुअली अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ क्लासेस हैं एंड वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो पाएंगे। सो प्लीज ओके। सो अगेन दिस इज द केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ द सप्लाई कर्व विल डिक्लाइन फ्रॉम S to S1. Equilibrium shifts from point E से point E1. So that means C. क्योंकि सप्लाई कम हुई है तो प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे एंड क्वांटिटी जो है वो कम होगी। So the movement will be like this. Till now there is any question? Let me check. Ma'am, I can't understand your quantity demanded and supply equilibrium schedule graph is equilibrium graph is clear but little bit doubt in schedule. आयुष एक चीज बताती हूँ, जो शेड्यूल था उसी को ही ग्राफ में कन्वर्ट किया जाता है। वी आर नॉट लाइक, हम ये नहीं कि शेड्यूल में अलग है, दोनों में लॉजिक सेम अप्लाई होगा। जब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाई से, तो इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए मैं बताती हूँ, सी जब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाई से, चाहे वो शेड्यूल का केस हो चाहे वो ग्राफ का केस हो, ठीक है? सो जब भी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी क्वांटिटी सप्लाई से, तो व्हाट आई हैव टू डू इज दैट, मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे प्राइसेस को चेंज करना पड़ेगा टू रीच द इक्विलिब्रियम ब्रैकेट। अब मुझे देखना है क्या चीज ज्यादा, डिमांड है ज्यादा सप्लाई से, मुझे माय क्वेश्चन इज तो डिमांड किसी तरीके कम हो। डिमांड कैसे कम होगी, जब प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है? या फिर आप सप्लाई से लेके चलो, जब प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा तभी प्राइसेस जो है
वो क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई में चेंज आएगा, राइट? So prices increase होंगे and similarly same thing happened in this case as well. So इस केस में prices को डिक्लाइन करना पड़ेगा because we have to increase the demand. अब चाहे मैं इसको शेड्यूल में करूं या डायग्राम में करूं, चीज यही है, कॉन्सेप्ट यही है, लॉजिक यही है, ठीक है? उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको एक पॉइंट शो करना पड़ेगा, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है. लेट्स सपोज मैंने एक क्वांटिटी लिया, लेट्स सपोज 100 यूनिट्स एट 10 रुपीज, ठीक है? अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड भी 100 होनी चाहिए और क्वांटिटी सप्लाई भी 100 होनी चाहिए. दिस इज द इक्विलिब्रियम, ठीक है? सॉरी, ये मेरी इक्विलिब्रियम है. इससे ऊपर लेट्स सपोज मैंने 9 प्राइस शो की है, तो यू हैव टू शो इन अ डिसइक्विलिब्रियम एंड यहाँ पे 11 शो की है. लेट्स सपोज सो प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, 120 है और यहाँ पे 80 है, ठीक है? और यहाँ पे आप प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पे ऑपोजिट कर सकते हो. बस सिर्फ ये करना, दैट्स इट. बस एक पॉइंट आपको ऐसा शो करना है जहां पे वी हैव इक्विलिब्रियम. आई होप आयुष मैंने आपकी क्वेरी को करा. आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. डिमांड सप्लाई से कम होगी तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि डिमांड को बढ़ाना. मैं आपको एग्जांपल दूं आयुष, जैसे मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ आपको. मैं एग्जांपल दे रही थी अनियंस की. पीछे आपको ध्यान दिया होगा 100 रुपीज से अबव प्राइसेस भी जा चुकी थी. वो क्यों गई थी? सो दैट कि हमें जो डिमांड सप्लाई को इक्विलिब्रियम में बनाना, ठीक है? अब डिमांड एंड सप्लाई को इक्विलिब्रियम में करने मतलब मेरे पास, अब यू नो अनियन हर कोई, ऑलमोस्ट हर कोई डिमांड करता है, ठीक है? मींस लेट्स सपोज 80% पीपल डिमांड अनियन. बहुत सारे कुछ लोग नहीं खाते तो लेट्स सपोज 80% पीपल डिमांड अनियन. अब जितनी उनकी डिमांड है, लेट्स सपोज 1000 क्विंटल्स डिमांड थी, बट मेरी प्रोडक्शन सिर्फ 600 क्विंटल्स हुई है. वो 400 क्विंटल्स का मेरे पास डेफिसिट है. उस डेफिसिट को कंप्लीट कैसे किया जाए? मैं क्या कोशिश करूंगी, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर दो. अब उस प्रोडक्ट की डिमांड तभी कम होगी जब हम प्राइसेस बढ़ाएंगे. प्राइसेस क्यों बढ़ाएंगे? डिमांड कैसे कम होगी? हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज 100 रुपीज प्राइस चलेगी. अब 100 चलेगी ये प्राइस, तो मैं क्या करूंगी, मैं बहुत असेंशियल जो कमोडिटीज हैं जैसे कि दाल है या उसमें है किसी प्रोडक्ट में डाल दूंगी, राइट? बट मैं सैलेड में काटना बंद कर दूंगी. मैं अपनी डिमांड को कम करूंगी सो दैट, अब हो सकता है वो मेरी पॉकेट अफोर्ड ही ना कर रही हो तो ऑब्वियसली उसमें से डिमांड कम हो जाएगी ना. आयुष आप डिमांड वाले चैप्टर से देखो इस चीज की क्लैरिटी, बिकॉज ऑल द फैक्टर्स जो डिमांड को कम करते हैं हमने वहां डिस्कस किए थे. आज मैंने एक एग्जांपल देके बताया. अगर इफ स्टिल इज नॉट क्लियर तो यू कैन कॉल मी. पवन, आई गेस आपने डिमांड का चैप्टर नहीं पढ़ा, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड. बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के और चेंज जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन दी लास्ट फ्यू लेक्चर्स, जितने भी हमने स्टार्टिंग से किए हैं. आप जरा वो चैप्टर्स पढ़ो, उसमें ये सारी क्लैरिटी है. प्राइस को चेंज कर रहेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज होगी तो वो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा. इंक्रीज होगा तो वो कोई और फैक्टर्स होंगे लाइक इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, टैक्सेस, कुछ भी और. You just go through from that chapter. Okay. Yes, Ishu, you are very much right. बस थोड़ा सा concentration, it's really simple. Lina, instead, I have already shared e-books. कुछ मैंने e-books already share कर दी हैं. अदरवाइज आप BA प्रोग्राम के SOL के जो है नोट्स भी
डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम दी SOL वेबसाइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट SOL के नोट्स डाउनलोड करने के अलावा भी आप अगर बुक प्रेफर करना चाहते हो तो TR जैन या कुछ भी आप ऐसी जो है बुक आप प्रेफर करोगे, बट सिर्फ आप ध्यान देना वो आपके BCom फर्स्ट सेमेस्टर की हो। सिलेबस और ई बुक्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, राइट? आई होप नाउ लेट मी चेक, नो। सो नाउ अगर यहां तक तो एक एक फैक्टर चेंज हो रहा था, या डिमांड चेंज हुआ था या सप्लाई चेंज हो रहा था, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज देयर इज अ साइमल्टेनियसली शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई का, दोनों में एक साथ शिफ्टिंग आ रही है। अगर दोनों में एक साथ शिफ्टिंग आ रही है, मैं उसका एक केस अभी बना रही हूं, बाकी इसके वैसे बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो कुछ केसेस आप खुद भी ट्राई करना, बहुत सिंपल है। एज इशू सेट कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक ही अप्लाई, लॉजिक भी नहीं है, जो हम डेली रूटीन में चीज अप्लाई करते हैं ना, बस हमने उसको कॉपी पेन में उतारना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हमने बस डेली रूटीन की जो चीजें हैं ना, बस उसको कॉपी पेन में उतारना, बस सिर्फ एक वे चेक करना है कैसे उतार रहे हैं। सी दिस इज माय डिमांड कर्व, this is my supply curve, right? So this is my prices, the equilibrium price and equilibrium quantity, ठीक है? यहां तक I guess किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। This is my equilibrium point, fine. Now let's suppose there is an increase in demand. इंक्रीज इन डिमांड जो हमने इस केस में किया, ये वाले केस में, राइट? इंक्रीज इन डिमांड एंड आई ट्राई टू यूज डिफरेंट कलर सो दैट कि आपको डिस्टिंग्विश पता लगे मैंने कहां कहां क्या क्या चीजें की। देयर इज अ साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड भी हुआ है, इंक्रीज इन सप्लाई भी हुआ है, ठीक है। नाउ द इक्विलिब्रियम विल बी एट point E1 where demand and supply both cuts each other. So let's see, this will be the my new quantity and price remains same. हाँ, जरूरी नहीं है प्राइस सेम रहे, राइट? जरूरी नहीं है कि जब प्राइस सेम रहे, प्राइस कब सेम रहती है? जब इंक्रीज in demand is just equals to increase in supply, means जितनी सप्लाई इंक्रीज हुई है उतनी ही डिमांड में चेंज है, जितनी सप्लाई, एंड सिमिलरली ये केस डिक्रीज में भी अप्लाई होगा, ठीक है? डिक्रीज वाला आप खुद कर लेना। सागर जरूरी नहीं है हर टाइम मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, हमें इक्विलिब्रियम में बनाना पड़ता है, हमें उसको किसी भी तरह चेंजेस करके, जब आप अपनी पॉकेट मनी की बात करो, मैं अभी कंज्यूमर की बात कर रही हूँ, ठीक है? आपके पास 100 रुपीज है, आप चाहते हो ना कि आप जो भी डिमांड करो आप उसी 100 में कंप्लीट करो, सो यू शुड बी, उसी चीज को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वी आर ट्राई, हाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपकी डिमांड ज्यादा, जैसे अभी फॉर एग्जांपल दिवाली आने वाली है, तो आप चाह रहे हो कि यू वांट टू बाय अ न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल, तो उसके लिए यू नीड एक्स्ट्रा मनी, व्हाट यू विल डू? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मांगोगे, आप अपने पेरेंट्स से मांगोगे, या कुछ क्लोज रिलेटिव सिबलिंग से मांग सकते हो, राइट? सो इन दैट केस यू आर टेकिंग, यार बोरो, सिबलिंग है यार बोरो दे दो, बोरो कर दो, नेक्स्ट I'll pay in the next whatever is in this car. So this is the case कि हम उसको किसी तरीके से इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली मैच कर जाएंगे फरीन, ठीक है? सो ये जरूरी नहीं है, कई बार मेरा कर्व जो है, आई विल मेक सम अदर कर्व,
जरूरी नहीं है मेरा इंक्रीज जो है वो सेम हो, ठीक है। साइमल्टेनियस शिफ्ट वाले कुछ पॉइंट्स आप खुद करना, ठीक है। So there is a increase in demand and there is a increase in supply. Now जिसमें ज्यादा चेंज आएगा ना उसके अकॉर्डिंग सब प्राइसेस सेट होती हैं. So this was the initial quantity and initial prices. So this is the initial quantity, initial price. Now new quantity will be this one, and now just have a look. Prices will decline. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा increase in supply ज्यादा हुआ है as compared to increase in demand. ठीक है, अगर increase in demand ज्यादा होगा तो जो है बेसिकली मैं क्विकली बना देती हूँ. So again this is the demand curve and this is the supply curve. Again this is the quantity and the equilibrium price, and this is the equilibrium quantity, and let's suppose the demand increases. The demand curve shifts from D to D1. Supply curve also shifts from S to S1. So now you have a look. क्वांटिटी तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी क्योंकि दोनों में इंक्रीज आया था. नाउ हैव अ लुक, डिमांड इंक्रीज ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू प्राइस, सो देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइसेस, राइट. सो सिमिलरली आप डिक्रीज के केसेस भी बना सकते हो, बनाओगे, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू, आप खुद कर लेना, वो चीज सेम ही है, बस वैसा वर्सा है. एंड एक इंक्रीज और दूसरा डिक्लाइन का केस भी बनेगा. एक मतलब डिमांड इंक्रीज, मैं एक केस बना देती हूँ, आप बाकी खुद कर लेना, बहुत सिंपल है बच्चे. सो दिस इज द डिमांड कर्व, बाकी वो चीज सेम बनेगी जैसे हमारा सिंपल कर्व्स थे, ठीक है. So let's suppose there is a increase in demand and decline in supply. C, ठीक है. तो ऐसे केसेस आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, जहां बस इक्विलिब्रियम आती जाएगी बस वही आपने देखने जाना, राइट. सो प्राइसेस विल डेफिनेटली इंक्रीज, बस यही चीज आपने एक्सप्लेन करनी, नथिंग एल्स. प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कोर्स. ऑलमोस्ट कंप्लीटली मैच करेंगे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के, और अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो सेकंड सेमेस्टर के भी डाउनलोड कर लेना. यू हैव फॉरइन सिलेबस so you can do that. I hope I have answered everybody's queries. If anything left, please let me know. If any query is left, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो please let me know. I'll answer right now only. इस टॉपिक से बच्चे एग्जाम में ऐसे पहुंचेंगे, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, और इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई विल इंक्रीज, या फिर डिमांड एंड सप्लाई विल डिक्रीज, या व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व और साइमल्टेनियस शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है. अगर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्लाइन इन,
बच्चे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड साइमल्टेनियसली कैसे बनाओगे? इक्विलिब्रियम दोनों शिफ्ट नहीं कर पाओगे ना। इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई बनाओगे, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई बनाओगे, इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। यशवी एडमिशन मैं आपको सिंपल बता दूं, आज मैं बता रही हूं, आगे से मुझे कोई प्लीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड क्वेरीज नहीं पूछे। आई एम अ इकोनॉमिक्स टीचर, तो मुझसे प्लीज इकोनॉमिक्स के बारे में पूछे। जो भी क्वेरीज रिलेटेड होंगी इकोनॉमिक्स की, आई ट्राई टू आंसर। मैं नहीं कहती कि मैं 100% परफेक्ट हूं, मैं 100% रिप्लाई कर पाऊंगी, बट आई ट्राई टू आंसर। ग्राफ्स की वेटेज आई यूज सबसे ज्यादा है। ग्राफ की वेटेज ज्यादा कौन सा बोला बच्चे आपने मुझे? डिक्रीज और इंक्रीज। देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, कोई लॉजिक नहीं, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं। कोई भी केस बनाना है, कोई भी, सबसे पहले टिल द टाइम मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए जिसमें थोड़ी सी जगह हो, सो दैट कि मैं आई कैन शेयर हियर। आपने सिंपल डिमांड कर्व बनाना है, सिंपल सप्लाई कर्व बनाना है, और जो भी शिफ्ट आपको पूछी गई है, लेट्स सपोज इंक्रीज इन डिमांड पूछा गया है, इंक्रीज इन डिमांड बनाना है पहले, सॉरी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बना लेना। ठीक है, अगर सिर्फ इंक्रीज इन पूछा गया तो यही केस में खत्म, इसमें इसी को एक्सप्लेन कर देना। अगर साइमल्टेनियसली सप्लाई भी पूछा गया तो सप्लाई कर्व भी बना देना। ठीक है, सो फिर देखो कि इक्विलिब्रियम कहां पे आ रही है, दोनों कहां पे इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, तो जो लाइन जहां पे जाएगी इंक्रीज डिक्रीज में, प्राइस में, बस उसी चीज को एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट। कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी है, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, कोई रट्टा करने लगाने की जरूरत नहीं है। राइट, आई गेस आई एम क्लियर। इज देयर एनी क्वेरी, एनीथिंग एल्स? Okay, then I'm taking you a leave. Okay, bye guys, take care, have a nice day.